सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज 16 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहले पेज पे कई राजनीतिक खबरों के अलावा हम एक स्कैम जो आजकल मोबाइल पे बढ़ते जा रहे हैं उसको लेके खबर है। डब्बा कॉलिंग place an extortion call to the target through internet. Dial the gang leader, usually based in different country, using a second phone. Place the two phones side by side on the speaker mode. Let the kingpin do the talking. For more than 6 months now, police in states such as Punjab, Haryana, Rajasthan, and Delhi have been poring over new puzzle: how to track gangsters making extortion calls. अब इसमें क्या होता है ना कि ओरिजिनल बंदे पुलिस कैसे ट्रैक करेगी। हालांकि ये कंटिन्यू उसको आगे ले जाते हैं। पहले पेज नंबर 2 पे जो इस आर्टिकल को और समझाया हुआ है। यहाँ पे होता क्या है ना कि ओरिजिनल गैंगस्टर को तो पुलिस ट्रेस ही नहीं कर पाती इस चक्कर में। अब कोई एक व्यक्ति होगा, वो अपने फ़ोन से फ़ोन करेगा, ठीक है। अब इसे पुलिस पकड़ भी लेगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन केस। मगर जो मेन गैंगस्टर होगा, है ना, ये दूसरे फ़ोन को उसके पास रख देगा, उस पर कॉल आई होती है मेन गैंगस्टर की, और इधर लाउड स्पीकर से उनसे बात करा देगा। तो जो ओरिजिनल किंग पिन है वो कोई पकड़ में आ ही नहीं पाता, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉल उससे करी नहीं होती है, उसे कोई दूसरे नंबर से कॉल करी होती है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर से बातचीत हो रही होती है। तो कोई अगर पकड़ में भी आता है ना, तो ये वाला व्यक्ति आएगा, वो भी अगर इनकेस आया तो इस व्यक्ति का कभी कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, कहाँ था, कौन आया, किससे बात करी। According to police sources, the method was flagged by police in the state at a recent meeting at Delhi Police Headquarters, which official representing the National Investigation Agency. In most such cases, the henchman and the kingpin are in different locations, even different countries, and making a VoIP call. तो ऐसे ही एक्सटॉर्शन वगैरह करके लोगों से पैसे की उगाही करी जा रही है, बिल्कुल बेधड़क, बिना किसी के डर के। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अन्य आर्टिकल्स की ओर, और आज का आर्टिकल है रिस्टोरिंग बैलेंस। Removal of export curbs on onion and basmati is welcome. Centre must lift restrictions on trade and other farm products. The government lifted curbs on onion and basmati rice exports in the form of minimum floor price $550 and $950 per ton, respectively, below which they cannot be shipped out of the country. तो सरकार ने अभी जो है अनियन और बासमती पे आपका रिलीफ दी है, लिफ्टिंग द एक्सपोर्ट कर्ब्स. The export duty on onions remains but has been halved to 20%. Friday also saw the center hike the effective import duty inclusive of social agriculture and social welfare cess on crude palm, soybean and sunflower oil पे उन्होंने बढ़ा दी है. The duty on refined palm, soybean and sunflower oil was raised from 13 to 35. The political timing of these moves cannot be missed. Haryana is a key basmati paddy growing state. Votes on October 5 when the new crops market arrivals would have been also taken off. Onion and soybean are likewise major crops in Maharashtra, Nashik, Ahmednagar, Pune and regions. The state too is scheduled to go on to polls later this year. तो अब इसके पीछे जो पॉलिटिकल मंशा ज़्यादा थी कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए बासमती राइस पे इन्होंने कर दिया, और अनियन का आपका अनियन सोयाबीन महाराष्ट्र से लिंक करता है, तो इसलिए वहाँ पे कर दिया रिलीफ. Electoral compulsions apart, the predominantly Maratha and Jat peasantry of Maharashtra and Haryana wields numerical as well as socio-political influence in their respective states. The Modi government latest actions seem to have been equally guided by economical factors. तो ये political economical decision है. The government farm trade policy in the last 2 years has more and been especially pro-consumer, with export and private stockholding restrictions being imposed alongside liberal imports. Ideal policy should be neutral between consumers and the producers, with any deviations being temporary and rule-based as opposed to arbitrary and knee-jerk. तमाम बातें करी हैं. तो फिलहाल सरकार वैसे भी जानते हैं कि एग्रीकल्चर के मामले में कंज्यूमर्स के हित में काम करती है, और कुछ डिसीजंस पॉलिटिकली भी लेने पड़ते हैं, तो ये भी चलता है. अगला आर्टिकल है इवेडिंग क्वेश्चंस. डिसबैंडिंग ऑफ कमिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स विल फर्दर अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ कंट्रीज डेटा कलेक्शन सिस्टम. अभी असल में सेंसस का तो मैटर चल ही रहा था. अब जो कमेटी होती है स्टैटिस्टिक्स वाली, उससे सरकार ने बढ़ा दिया है.
Last week, Center abruptly disbanded the 14-member standing committee on statistics. The committee, which was first formed in December 2019 and later expanded in January 2023, was tasked with overseeing all statistical surveys by the Ministry of Statistics and Program Implementation. A letter by Ministry to the panel members reasoned that the work done by the committee is similar to that of a recently formed Steering Committee for National Sample Surveys. Yet the committee members, led by former Chief Statistician Pranab Sen, seem clueless about the government's exact motive. Moreover, as this newspaper reported, the dissolution has happened amid apparent concern raised by some member over the delay in conducting census 2021. अच्छा, ये कुछ अखबारों के हिसाब से ये खबर आई है कि ये सब हुआ इसलिए क्योंकि जो चीफ की कुछ मेंबर्स थे इस कमेटी के, उन्होंने सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाया कि आप जो सेंसस नहीं करा रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है और ज़रूरी सेंसस। तो अखबार ये कह रहे हैं कि इस चीज़ से थोड़ा सा गुस्सा में आकर सरकार ने कमेटी पर ख़त्म कर दी है। Two aspects of this development are noteworthy. One is to understand why the delay in the decennial census is serious. Two, how this resolution undermines the already worsening credibility of India's statistical framework. और ये मैंने आपको शायद बहुत पहले, शायद 5-6 महीने 4 महीने पहले आर्टिकल एक बार इंडियन एक्सप्रेस का आया था, जो खुद फॉर्मर एक स्टैटिस्टिशियन का था और वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अधिकारी भी रही हैं। उन्होंने खुद बताया था कि इस समय बिल्कुल भी इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है, आपका डेटा वगैरह है, वो मैनिपुलेट करा जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा था। और स्टैटिस्टिशियन क्रेडिबिलिटी अभी नहीं है इंस्टीट्यूशंस में, है ना। जैसे कि अगर आप गूगल करेंगे तो गरीबी कैलकुलेट करने का और कई WPI CBI को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज कर दिया है, तमाम चीज़ें हैं। इस वजह से एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन कम दिख रहा है, फूड इन्फ्लेशन वगैरह को लेके कई आर्टिकल्स में मैंने बताया है, तो उस पर आज नहीं जाएंगे। तो इसमें वही हाईलाइट कर रहा है कि वैसे भी इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है स्टैटिस्टिशियल फ्रेमवर्क की, वो क्वेश्चन मार्क में है ही। The decennial census provides the foundation for the entire statistical system of the country. For instance, in the absence of census, there is no clarity the extent of the urbanization in the country. अच्छा, अभी हमें ये पता नहीं लग पा रहा ना, अगर जनगणना नहीं होगी तो हम एग्जैक्टली कैसे बता पाएंगे कितने लोग शहर में आ गए हैं, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बीते 10 सालों में तो कई सालों से लोग का पलायन कर चुके हैं, शहर में आ चुके हैं। क्या ग्रामीण में आज भी उतने लोग रह रहे हैं? तो क्या हमें उनके से योजनाएं बनानी चाहिए, ये जाना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, अंडर द 2023 लास्ट सैम्पल सर्वे टू मैप द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडियंस डेटेड बैक टू 11-12, मतलब 2011-12 के डेटा पे हम आज बात कर रहे हैं, जो कि कितना चेंजेस आ चुका है डेमोग्राफिकली भी। द सर्वे रिजल्ट्स in turn provided the base for other critical policy metrics just inflation rates and poverty, और यही हमारा आज तक का बेस है। Not surprisingly, Sen told this newspaper that while there was no recent discussion, it is true that our members had earlier expressed concerns that in the absence of census, both economic census and census household surveys are unreliable. तो जब तक नया सेंसस नहीं होगा, हाउस होल्ड सर्वे भी रिलायबल नहीं माना जा सकता। यही बात जो अखबारों में आ रही है कि कमेटी ने कुछ सवाल उठाए थे, जिसके बाद उसका जवाब इस रूप में आया कि कमेटी को हटा दिया गया। Over the past decade, almost every statistic that matters has been questioned, sometimes even in the government itself. For instance, in 2019, the government ran down the result of the first periodic labor force survey as it showed unemployment had hit a 45-year high in 1718. Several commentators, led by one of the government's former chief economic advisors, have argued that India's GDP data is misleading. ये जो मैंने आपसे कहा कि जो अधिकारी पुराने रहे हैं, उन सब ने ये कहा है कि जो इंडिया का GDP डेटा वगैरह है सब मिसलीडिंग है इस समय, क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से बेस लिया ही नहीं किया है। लास्ट ईयर, a member of PM's Economic Advisory Council argued the major surveys used by policymakers are based on unsound data collection frameworks. The larger concern that this episode raises is about credibility of India's statistical फ्रेमवर्क। ये देखिए, यहाँ पे वही बात करी गई है। कई पुराने अधिकारियों द्वारा, कई पुराने, वो भी टॉप लेवल के अधिकारी जो ऑडिट सर्विसेज में रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो डेटा आजकल आपके सामने थोपा जा रहा है कि ये डेटा है, इतने आंकड़े, इतना करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ये डेटा एक्चुअली रिलायबल है ही नहीं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए जो बेस है, जो सैम्पल साइज़ है, वो तो कब का एक्सपायर हो चुका है, मतलब कि वो आउटडेटेड हो चुका है। अगर आपको एट प्रेजेंट कोई इसका एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो यू हैव टू डू सेंसस, तभी आप एट प्रेजेंट कौन सी योजना को कहाँ इम्प्लीमेंट करना है,
कहाँ पे क्या करना है ये बता पाएंगे। और यहाँ पे देखिए पीएम्स की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अधिकारी थे, उन्होंने भी ये बात कही है। मेंबर थे एक सीनियर, उन्होंने भी बात कही है, और कई अखबार भी इस पे प्रकाश डालते ही हैं। और खुद इस कमेटी जिसे प्रणब सेन लीड कर रहे थे, इन्होंने जब ये सवाल उठाए तो उनको दुर्भाग्य से कमेटी को हटा दिया गया। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि कमेटी डबल रोल कर रही है, मतलब ऑलरेडी दूसरी कमेटी है एक नेशनल सैंपल सर्वे की जो ये काम कर रही है, तो इसलिए हमें 2 कमेटी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कमेटी को डिसबैंड कर दिया गया। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगला आर्टिकल की ओर। अगला आर्टिकल है पावरिंग अहेड विद द कंपटीशन, और ये आर्टिकल है पावर सेक्टर को लेके। ये आर्टिकल लिखने में कंट्रीब्यूट करा है आन जोशी, शांतनु दीक्षित, अश्विनी जी गंभीर एंड अशोक श्रीनिवास। 2 decades ago, India introduced a competitive bidding for electricity power procurement, which has yielded significant results in the form of greater competition and increased investments. Competitive bidding based on price discovery leverage rapid technological advancements, मतलब competitive bidding हमने शुरुआत करी थी और उससे हमें फ़ायदा हुआ है। Tariffs fell from 15 kilowatt hour in the initial bidding round 2010 to rupees 2.80 kilowatt hour by 2018. About 27 gigawatt of capacity was added, driven by the private sector. In the wind space, competitive bidding led to tariffs falling from 5.30 to 2.50. Recently, the renewable energy sector introduced several innovations to meet the growing demand for reliable power supply. हाल ही में देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है आपका सोलर, विंड वगैरह, इसने कंट्रीब्यूट कर रहा है पावर सेक्टर को। Since 2018, over 9 gigawatt of renewable energy and 50 gigawatt of storage have been contracted through shortage-linked tenders to overcome the challenges of intermittent renewables. The renewable energy sector has lower entry barriers compared to traditional power sources, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, नया नया है, तो अभी तो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है और अभी इतने नियम भी नहीं है। शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट भी कम लगती है, एब्सेंस ऑफ फ्यूल रिलेटेड रिस्क एंड द मॉडर्न नेचर ऑफ टेक्नोलॉजीज, स्पेशली सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी में अभी भी सेक्टर में किसी भी व्यक्ति को एंटर करने में अभी कोई खास समस्या नहीं आती है, और इस सेक्टर में ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं एंट्री करने से पहले जो कि हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल ऐसे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। एवोल्यूशन इज एविडेंट इन 3 key areas: increase capacity, price reduction, and improvement in the tender conditions to meet the complex requirement of procures. A recent development threatens this positive trend. Some states are inviting bids for capacity from both coal and solar sources using a composite bid structure. अब ये कह रहे हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कोयला मतलब कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स और सोलर एनर्जी किस दोनों को मिला के प्रोक्योरमेंट के लिए बिडिंग करवा रहे हैं। दिस टेंडर्स रिक्वायर बिडर्स टू सप्लाई बोथ एनर्जी सोर्सेस, और जो बिडर्स होंगे वो पावर सेक्टर में दोनों सब सप्लाई करेंगे विद सिलेक्शन बेस्ड ऑन एन एवरेज आरएफ। फॉर एग्जांपल वन टेंडर, इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। इन द फॉर्मर द एंटायर कैपेसिटी कैन बी शेयर्ड बाय एट मोस्ट 2 bidders, and in the latter the total quantum is to be offered by each bidder. This would mean an investment of about 28,000 crores from one or two parties in the first case, and the investment of rupees 52,000 crores from a single party in the other case. अब अगर एक ही आदमी आपको सोलर और कोल सप्लाई देगा तो उससे लगभग 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। These tenders represent the majority of both coal and solar capacity needs for these states over the next 6 to 8 years. However, despite the composite bidding, actual power delivery timelines will differ significantly. Coal plants require about 6 to 7 years to become operational compared to 1.5 to 2 years of solar projects. मतलब अगर हम देखें तो कोल पावर प्लांट्स तो अगर बनाना शुरू कर रहे हैं तो 6 से 7 साल में जाके पूरा होगा, वहीं पर सोलर प्रोजेक्ट्स जो प्लांट्स हैं 1 से 2 साल में। Allocating a majority of the future capacity to a single tender is akin to putting all eggs in one basket. This approach not only excludes small players due to massive investments required but also eliminates potential tariff reductions. देखते हैं आगे। तो इसमें यही बात करी गई है कि कैसे भी ज़रूरत है और रिफॉर्म्स के क्षेत्र में दिस अप्रोच इफेक्टिवली एक्सक्लूड्स मेनी डेवलपर्स फ्रॉम द बिडिंग प्रोसेस। अब एक ही आदमी कोल भी प्रोवाइड कराएगा और एक ही व्यक्ति रिन्यूएबल प्रोवाइड कराएगा, तो ये बहुत ही हाई बिडिंग कॉस्ट लग जाएगी, तो कोई इसमें कैसे बच पाएगा। Some players may struggle to secure the necessary capital for investment at the scale. Developers without expertise in building and operating thermal power plants also find themselves at a disadvantage. Though they may be competitive in the solar sector, thermal as well as solar plants will continue to operate independently, offering no particular advantage due to composite tendering.
By concentrating procurement in large, composite tenders, states will be foregoing benefits of more diverse, competitive, phase-wise, and innovative power procurement. Whether these proposals will translate to procurement, and if so, what price point is need to be seen. The advancement towards a robust wholesale power price discovery through competitive bidding should not be undermined by such arrangements. तो पावर सेक्टर में इसीलिए ये आर्टिकल के माध्यम से ध्यान केंद्रित करा जा रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी नीतियाँ ही बनानी चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हो और इस क्षेत्र में बिडिंग वगैरह बढ़ेंगी और विकास होगा। अगला आर्टिकल है लो एंड हाई स्किल जॉब गैप प्राइजेस। जो हम जान रहे हैं कि इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बुरा चल रहा है, चल ही नहीं रहा, बुरा क्या चलेगा, उसको लेकर आर्टिकल है वो द पास्ट 2 decades. India's economic growth has increasingly been driven by a service sector, IT, banking and finance. The stagnation in the manufacturing, which continues to remain at about 14% and well short of a targeted 25%, has exacerbated in the divide between the high skill and low skill jobs. है ना, एक डिवाइड से क्रिएट हो रहा है हाई स्किल लो स्किल जॉब्स के बीच में. ऑल दो जॉब क्रिएशन एंड इनकम लेवल्स फॉर लार्जर पूल ऑफ क्वालिफाइड IT professionals have increased, particularly with the multinational companies establishing data analytics and software development hubs known as global capability centers. In India, the country's manufacturing weakness have caused it to fall behind Bangladesh in textiles. तो हमारी स्थिति इतनी ख़राब है मैनुफैक्चरिंग में कि हम बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी पीछे हैं. Thailand is in a machinery and Vietnam electronics. This has led to consistent decline in the creation of low-skilled jobs across the country. मतलब ना आप लोगों को चाहे वो GTI ITI कराइए, BTech MTech कराइए, लो स्किल जॉब्स भी देनी पड़ेंगी आपको, लो स्किल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को, ताकि वो कम से कम कहीं पर टिक तो सके. और उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा. Economists have highlighted that a country with a population of 1.4 billion cannot rely solely on the service sector and will need to all sectors of the economy to contribute to job creation. According to Economic Survey 23-24, India needs to create nearly 7.85 million jobs annually. मतलब annually 7.85 million jobs create करनी पड़ेंगी in the non-farm sector to accommodate the growing workforce. However, the Center of Monitoring Indian Economy report that national unemployment rate surged from 7% to 9%, जबकि बेरोजगारी की दर जो है 9% तक पहुंच चुकी है. हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में identified that find a worrying trend. Export related jobs in India have been declining over the past decade. Direct employment linked to exports peaked at 9.5% of the total domestic employment in 2012, but fell to 6.5% in 2020. The World Bank attributed this decline to dominance of services sector and the high skill manufacturing in India's export basket. हो क्या रहा है कि या तो बिल्कुल हाई स्किल लेवल पे हमारी जो वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है, और हाई स्किल वाले तो बहुत ही कम है, 1% से भी कम लोग हाई स्किल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या बहुत ही कम कर रहे हैं. मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी जो है वो लो स्किल वर्कफोर्स में अच्छा ऑक्यूपाई कर सकती है, मगर बात यह है कि उनको एब्जॉर्व करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग का. और सिर्फ सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, IT में हर कोई कितना भी कंट्रीब्यूट कर ले वो सैचुरेट हो चुका है. The World Bank's observation aligns with the stark contrast between growth of services and manufacturing exports from India. While India's services exports constitute 44.3% of the world's commercial services, goods exports barely account for 1.8% of the global goods market. While India's services exports, हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट है, जो हम सर्विसेज देते हैं, है ना, चाहे हम लोग कोई घर बैठे बैठे फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, या कुछ भी कर रहे हैं, या फेसबुक गूगल के लिए हम काम करते हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में, पर इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट 4.3%. ठीक है ना. सर्विसेज एक्सपोर्ट कितना, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स कितना, 4.3% of the world commercial services exports. Goods exports barely account for 1.8%. वही जो हमारे गुड्स एक्सपोर्ट है, गुड्स एक्सपोर्ट 1.8% भी नहीं है. इसका मतलब क्या, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि भैया जब आप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करोगे तो आप कैसे लीड करोगे मार्केट को. सर्विस देने से नहीं आप मार्केट लीड कर सकते हो सिर्फ ना, वो तो देकर ही रहे हो, वो हम जानते हैं. वैसे भी आप भी जानते होंगे बहुत लोग कि कैसे मार्केट्स बुरी तरीके से सैचुरेट हो चुका है. दिल्ली, गुड़गांव में जितने भी आपके साथी
या भाई बहन टेक्निकल सर्विसेज में जॉब करते थे इंजीनियरिंग करके या एमबीए करके, दे आर स्ट्रगलिंग टू सिक्योर अ जॉब प्रॉपरली बिकॉज उस सेक्टर में सैचुरेट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। वहीं पे इतना बड़ा तबका युवा का है जो कि लो स्किल्ड ही रह सकता है, उसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो हाई कंपनीज में काम कर सके या अच्छी क्षेत्रों में जाके अपना योगदान दे सके। तो ऐसे व्यक्तियों को और हम महत्वपूर्ण जगह पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वो महत्वपूर्ण जगह है मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपने इतना बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, तो आप देखिए ना बीते बहुत जल्द ही आपका जो गुड्स एक्सपोर्ट वो बढ़ेगा, और गुड्स एक्सपोर्ट से इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर चल पाती है ना। गुड्स एक्सपोर्ट से देखिए चाइना डोमिनेट क्यों कर रहा है दुनिया के ऊपर, चाइना मैन्युफैक्चरिंग किंग हो चुका है ना। चाइना या कोई भी नेशन, जब तक देखिए मैन्युफैक्चरिंग आपके हाथ में नहीं आएगा, आप उतना बड़ा डिप्लोमेटिकल भी रोल नहीं प्ले कर पाएंगे, है ना। चलिए, यही सब बात इसमें करी हुई है और जगह पे आर्टिकल में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। While the transition from the early BPO days to the IT services sector boom, अच्छा एक टाइम को याद है, एक टाइम में सिर्फ बीपीओ वाले लोग बहुत कंपनी ज्वाइन करते थे, कॉल सेंटर वगैरह, और दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज का कॉल सेंटर पूरा पूरा हायर कर लिया उसके लिए, कंपनी के लिए थर्ड पार्टी काम चल रहा है। ये एक टाइम बहुत बहुत भयंकर ट्रेंड चला था। लोगों ने अपना जॉब स्विच करके यहीं पे आ गए थे, पार्ट टाइम फुल टाइम करके अपना काम करते थे। अब ये शिफ्ट हुआ किस में, आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर जॉब्स, है ना, इंजीनियरिंग वगैरह में, ठीक है ना, बरोबर इसमें शिफ्ट हुआ आपका। एंड टू एस्टैब्लिश द मोर एडवांस जीसीसीज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैज़ लार्जली बीन एवोल्यूशनरी विद द मिनिमल गवर्नमेंट सपोर्ट। और ये क्षेत्र की खास बात विशेषकर ये रही है कि अपने आप बड़ा है, अपने आप ग्रो करा है। हालांकि इसको और बेहतर कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट का भी इसमें योगदान देना शुरू हो जाएगा। डिक्लाइनिंग पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, low participation in global value chains is one of the reasons India has struggled to generate sufficient trade-related jobs. According to World Bank, around 70% of the international trade involves GVCs, global value chains. But despite rapid economic growth, India's trade in goods and services decreased. वही मैंने कहा ना, ये मैंने पहले भी के आर्टिकल्स में बताया हुआ है कि कैसे इंडिया में के शेप रिकवरी तो हो रही है, मतलब ग्रोथ दिखेगी आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रोथ नहीं हो रही है, मगर वो के शेप इकोनॉमिकल ग्रोथ है। इसमें ग्रोथ तो दिख रही है मगर एक सेक्टर पूरा डूबता हुआ जा रहा है, या फिर एक बड़ा तबका लार्ज पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट या लो वेजेस की जॉब कर रही है। अब इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है मगर गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर में बिल्कुल डिक्लाइन जा रहा है। ग्लोबल वैल्यू चेन में हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पे हमें करना चाहिए था, और जिस स्तर पे हमारे पास संसाधन एवं लोग हैं, मानव संसाधन हैं। The World Bank's firm level data showed that Indian exporters with GVC linkages demonstrate stronger export performance and greater diversification in products and markets compared to those without such connections. However, India's participation in the GVCs has been declining due to its issues such as difficulties in procuring raw materials and high transport cost. तो ये भी समस्या रहेगी, हमारी पॉलिसी भी उस इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं हो पाई है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे पाएँ या मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर पाएँ। आगे बढ़ते हुए ये और आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, ये आर्टिकल अच्छा है मगर कुछ विशेष नहीं था, क्योंकि वुमेन एंड मेडिसिन कंट्रीब्यूशन को लेके है, कितना कंट्रीब्यूट डॉक्टर्स हैं, कितनी मेडिसिन में कौन से कोर्स में महिलाएं हैं। गायनाकोलॉजी में 17 महिलाएं 1101 हैं, फिर पैथोलॉजी में हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन कंट्रीब्यूशन इन द वर्कफोर्स को लेके इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। और आज के लिए इतने रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वेबसाइट पर डाल देंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाके ज़रूर विज़िट करिएगा और बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़िए वहाँ पे। हमने वैसे भी आर्टिकल आज लिखा है नाटो को लेकर कि नाटो क्या है, नाटो कैसे बना है, बहुत ही शॉर्ट में लिखा ताकि आप लोग को भी पढ़ के याद रहे कि नाटो कैसे बना है, कितने मेंबर्स हैं, नाटो का ऑब्जेक्टिव क्या है। कल फिर आते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।